નમસ્કાર, હું આસ્થા તિવારી અને આપ જોઈ રહ્યા છો જનાદેશ ન્યૂઝ। નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચાર ઉપર। સુરત શહેર પોલીસ સેક્શન મોડમાં આવી। દિવાળીના તહેવારને લઈને સુરત પોલીસ થઈ છે સતર્ક। સુરત શહેર પોલીસ કમિશનરની અધ્યક્ષતામાં મીટિંગ યોજાઈ। શહેરના તમામ અધિકારીઓ સાથે મીટિંગ કરવામાં આવી। શહેરના જેસીપી, ડીસીપી, એસીપી અને પીઆઈ કક્ષાના અધિકારીઓ રહ્યા હાજર। દિવાળી સમયે ક્રાઇમ પર કંટ્રોલ કેવી રીતે કરવો, મોટી ઘટના ન બને તે માટે તકેદારી રાખવા સૂચન કરવામાં આવ્યું હતું। 31 અક્ટોબરના રોજ દીપાવલીનો શુભ તહેવાર છે। આ તહેવાર પહેલાં આપણા તમામ જો માર્કેટોમાં ખૂબ જ ખરીદીનો માહોલ જોવા મળે છે અને આ એવા તહેવારો હોય છે કે મોટા પ્રમાણમાં જો લોકો સોના ચાંદીના જ્વેલરી ખરીદતા હોય છે, ડાયમંડ ખરીદતા હોય છે, કપડાઓ ખરીદતા હોય છે અને જેટલા બી મજૂરો છે, જેટલા બી લેબર છે, જો બહારથી બી આવીને આપણે સુરત શહેરમાં રહે છે, આ લોકો પોતપોતાના વતન પર અલગ અલગ તહેવારો કરવા માટે જાય છે। ત્યારે એના પર જો પગાર મળતી હોય છે, એના બોનસ મળતા હોય છે, જેના લીધે જો કેશના વધારે લેવડ દેવડ બેંકોમાં બી થતી રહે છે, માર્કેટમાં ખરીદીનો માહોલ રહે છે। આ તમામ બાબતોને ધ્યાને રાખી આજે અમે લોકો એક મીટિંગ લીધી, જ્યાં અમારા તમામ પોલીસ અધિકારીઓ સાથે આપણા આંગડિયા એસોસિએશનના, જ્વેલર્સ એસોસિએશનના, ડાયમંડ એસોસિએશનના અને બાકી જો ગઈકાલે વગેરે ટેક્સટાઇલ એસોસિએશન સાથે મિટિંગો થઈ। આ મિટિંગમાં ઘણી બધી બાબતો અમે લોકો શેર કરી, જેથી કે બંને લોકો મળીને અમારા આ ધંધા સાથે સંકળાયેલા લોકો અને પોલીસના અધિકારીઓ એકબીજા સાથે મળીને આપણે સુરત શહેરમાં ખૂબ સારા માહોલ રાખે, જેના લીધે કોઈ બનાવ નહીં બને। ખાસ કરીને આ પ્રકારના જે રીતના બનાવ બને છે, કોઈ ચોરી લૂંટ વગેરેના બનાવ બનતા હોય છે, કોઈ મહિલા કોઈની ઉપર ફેંકાઈ ગયા છે, તમે સાફ કરવા જાઓ કરીને જો એના જો નજર ચૂકવીને બી થેલાઓ લઈને જતા રહે છે, બાઇક ખરાબ થઈ ગઈ છે, 4 વ્હીલર ખરાબ થઈ ગયા છે, તેલ પડે છે, આ પ્રકાર બી કરીને લોકો લઈ જાય છે। આ તમામ બાબતોના એના સૂચના આપવામાં આવી અને જ્વેલર્સને જેટલા બી દુકાનો છે ત્યાંના એલાર્મ એમરજન્સી એલાર્મના ફિટિંગ કરવા માટે સૂચના આપવામાં આવી, જે લગભગ 50% વધુમાં લાગી પડી ગયા છે। સાથોસાથ हमारी पुलिस पेट्रोलिंग અમે લોકો રાખી છે, જે સતત પોલીસ આ તમામ જ્વેલરી શોપ ઉપર જશે, હથિયારી પોલીસ રહેશે અને ચેક કરતા રહેશે ત્યાંના પ્રાઇવેટ ગાર્ડને બી, અને આ લોકો ત્યાં બી અંદર બી જોતા રહેશે કોઈ પ્રકારના કોઈ તકલીફ તો નથી પડી રહી છે। આ પ્રકાર ડાયમંડ માર્કેટમાં આ પ્રકાર તમામ બેંકો ઉપર જો વોચ રાખવામાં આવી રહ્યા છે અને જેટલા બી અમારા માર્કેટ છે, ખાસ કરીને ભાગળ બાજુના માર્કેટ જ્યાં ચોકસી બજાર થયા और बड़ौदा प्रेस्टीज मार्केट है, अपना वराछा विस्तार में चौटा बाजार मार्केट है। आ प्रकार अलग अलग मार्केट વધુ પ્રમાણમાં અમારા ગામડાના લોકો બી આવતા હોય છે ખરીદી કરવા માટે। આ વિસ્તારમાં અમે અલગ સીસીટીવી કેમેરા પણ મુકાઈએ છીએ, સાથોસાથ પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમ અમે મૂકીએ છીએ, જો કન્ટિન્યુઅસ આ વિસ્તારમાં અમારા પોલીસ ટીમ રહેશે, આ એના પર વોચ રાખતા રહેશે અને અનાઉન્સમેન્ટ પણ કરતા રહેશે। અને અમુક જગ્યાઓ અમે લોકો ફિક્સ પોઈન્ટ રાખીએ છીએ જ્યાં આંગળીયાના વધારે અવર જવર થતી હોય તે વિસ્તારમાં, અને તમામ લોકોને અમે અપીલ પણ કરી છે કે પોલીસ અથવા કોઈ પણ એજન્સી, ઇન્કમ ટેક્સ હોય, કસ્ટમ હોય, પોલીસ હોય અથવા જો લોકો સીબીઆઈના નામે બી રોડ રસ્તાઓ ઉપર જો કોઈ સોની યા કોઈ જ્વેલરી યા કોઈ રકમ લઈને જતા હોય તો એના કોઈ દિવસ ચેક કરાવતી નથી। અગર કોઈ પણ વ્યક્તિ રોકે અને જાહેર રસ્તા ઉપર જો બોલે, બીચ રસ્તા ઉપર કે તમે બેગ ખોલો, તો કોઈ ખોલે નહીં, બલ્કि પોલીસ સ્ટેશનમાં આવીને એના આગ્રહ રાખે આ પોલીસ સ્ટેશન જ અમે ચલો, ત્યાં અમે બેગ ખોલીને ચેક કરાવી જોઈએ, જેથી કે આ પ્રકારના ઘણા બધા ચીટિંગના બનાવો બનેલા છે। આ લોકો કોઈને કોઈ ભેષ ધારણ કરીને, કોઈ એજન્સીને ભેષ ધારણ કરીને આ લોકોને પૈસા લઈને જતા રહ્યા છે। તો અહીંયા બે બનાવ પણ બના છે। 5 કરોડ રૂપિયા ઇન્કમ ટેક્સ અધિકારી બનીને ગયા વખતે 8 કરોડ રૂપિયા ઇન્કમ ટેક્સ અધિકારી બનીને ખોટા ઓળખ ધારણ કરીને આ બધા લઈ ગયા। તો આ પણ પ્રકારની બી સમજ આપવામાં આવી। शुभ दीपावली का पर्व है, उससे पहले सभी बाज़ारों में खरीदी का माहौल देखने में आ रहा है, जिसमें डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरीज, कपड़ों की खरीदी और अलग अलग प्रकार के जितने मार्केट में खरीदियों का माहौल है। यहाँ पे सूरत एक बहुत बड़ा मार्केट है, जिसके वजह से अगल बगल के ज़िलों के लोग भी यहाँ पे आते हैं, तो सभी की सुरक्षा अच्छे से हम लोग जो सुनिश्चित करा सकें, इसके लिए आज जो पुलिस अधिकारियों और ज्वेलर्स एसोसिएशन, डायमंड एसोसिएशन, आंगड़िया एसोसिएशन, बैंक के अधिकारियों के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया। कल टेक्सटाइल एसोसिएशन के साथ में मीटिंग अधिकारियों की हो चुकी है।
जिसमें हम लोगों ने उनके साथ चर्चा की कितने प्रिकॉशंस रखे जाएं जिसके वजह से पूरा त्यौहार अच्छे से जाए और कोई किसी के साथ कोई अघटित बनाव नहीं बने। खास करके हमने पुलिस ने ये भी अपील किया है कि पुलिस के द्वारा या इनकम टैक्स या जीएसटी या सीबीआई अधिकारियों के रूप में कोई भी किसी का थैला हम रोड के ऊपर नहीं खुलाते। और जनरली ये देखा गया है कि रोड पे कोई सोना चांदी के दागिना लेके जा रहा है या पैसा लेके जा रहा है तो उसको पुलिस अधिकारी बन के लोग खुला के वहाँ से फिर उनके साथ चीटिंग करके भाग जाते हैं पैसा लेके। तो ये सब चीज़ें उनको बोला गया कि आप विश्वास रखें, कोई इस प्रकार कोई भी एजेंसी ये काम नहीं करती है और अगर किसी को कोई तकलीफ है तो तात्कालिक 100 नंबर पर डायल करे और पुलिस स्टेशन में वो आ जाए, उस हिसाब से उसको हम लोग मतलब मदद भी करेंगे। उसके अलावा जितने भी ऐसे मार्केट्स हैं वहाँ पे हम लोग फिक्स पॉइंट रख रहे हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा रहे हैं, सीसीटीवी कैमराज एडिशनल डाले जा रहे हैं जिसकी वजह से कोई अनिच्छनीय बनाव नहीं बने। और हमारी पुलिस की कंटिन्यूस पेट्रोलिंग जो बड़े बड़े जितने भी शोरूम्स हैं ज्वेलरीज वगैरह के डायमंड की वहाँ पे पेट्रोलिंग रहेगी। हमारा हथियारी आदमी इन सबको पेट्रोल करेगा और उनका जो प्राइवेट गार्ड है उसको भी चेक करता रहेगा और दुकानदारों जितने भी शोरूम है उनके उनसे भी मिलता रहेगा लोगों से कि जिससे कोई प्रकार का कोई वहाँ पे बनाव ना बने। और उसके अलावा जो है जब ये दिवाली के समय होता है लोग घरों बहुत सारे लोग अपने वतन में जाते हैं, अदर स्टेट के बहुत सारे लोग हैं जो कि त्यौहार मनाने के लिए जाते हैं तो उनको भी हम लोग अपील कर रहे हैं। उनको भी एक हम लोगों ने उनसे एक जारी किया है उनको एक एडवाइजरी कि लोग पुलिस को बता के जाएं कि किसी घर बंद है कितने दिन बाद आने वाले हैं, जिससे हमारी जो पेट्रोलिंग्स होती है उनके विस्तार को घर को सोसाइटी को हम लोग अपना पेट्रोलिंग में ले लें जिससे वजह से कोई भी हाउस ब्रेकिंग वगैरह का बनाव नहीं बने और ये त्यौहार सब लोग मनाएं मिल के पुलिस और प्रजा के द्वारा और जितने भी हमने बताया संस्थाओं के द्वारा एक दूसरे के साथ मिल के खूब अच्छे से त्यौहार मनाया जाए। ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है, पिक पॉकेटर्स के पीछे भी क्राइम ब्रांच की टीमें हैं तो जो हमारे गाँव से लोग आते हैं जो छोटा मोटा खरीदी करने के लिए आते हैं उनके साथ भी पिक पॉकेटिंग वगैरह कोई बनाव ना बने, ऐसे संपूर्ण तैयारी सूरत शहर पुलिस ने की है। માટે जो બીજા તબક્કામાં जो અમારા અધિકારીઓએ બોલા કે લોકો વતન જતા હોય છે તો ઘર બંધ હોય છે, સોસાયટી બંધ હોય છે તો ત્યાં કોઈ ઘરફોડી વગેરેના કોઈ બીજા બનાવ નહીં બને તો જે તે બધી જગ્યાએ જેટલા લોકો ઘર જતા હોય છે પુલિસ સ્ટેશનમાં જાણ કરે જેથી અમારી પેટ્રોલિંગમાં આ બધા એના સોસાયટી અને ઘરોને અમે લોકો આવરી લઈ જોઈએ। અને આ જ માટે અમે લોકો થોડા સીસીટીવી લગાવવા માટે કે થોડા બહાર જો જેટલા બી દુકાનો છે દુકાનમાં સીસીટીવી લગાવે છે પરંતુ એક સીસીટીવી બહારના રોડ રસ્તાઓ કવર થતા હોય આ રીતે લગાવે। સાથોસાથ તમામ પોલીસ સ્ટેશનોના અમે લોકો જો એક એડવાઇઝરી જાહેર કરી છે કે લોકો કેવી રીતે જો બહાર ગામ જતા હોય ફરવા જતા હોય લોકો પણ આપણને જાણ કરીને જાય, પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુપ્ત એક લેટર આપીને જાય કે આ નથી એટલા દિવસ માટે જેથી અમે પેટ્રોલિંગમાં આના વિસ્તાર અમે લઈ લઈએ જોઈએ। कल लगभग 700 लोगों का टेक्सटाइल एसोसिएशन के लोगों को बुलाया गया था क्योंकि उनकी संख्या बहुत बड़ी थी इसलिए उनके अपने विस्तार में जोन 2 डीसीपी ने और सेक्टर 1 ने उनके विस्तार में लिया था क्योंकि अभी टेक्सटाइल का जो जिस ढंग से अभी खरीदी होकर शादियों का सीज़न अब चालू होगा उसकी एडवांस में खरीदियाँ भी हो रही हैं तो उनके काफ़ी पैसे का एक्सचेंज हो रहा है, बैंकों से पैसा आ रहा है, जो भी लेबर्स हैं उनको पैसा देने के लिए उनका एडवांस देने के लिए बोनस देने के लिए काफ़ी पैसे का मूवमेंट हो रहा है। तो इसके लिए अलग से कल हम लोगों ने लगभग 700 जितने लोगों की एक मीटिंग टेक्सटाइल मार्केट में कल की गई थी। संख्या बहुत ज़्यादा है, टेक्सटाइल मार्केट में लगभग 70,000 के आसपास उनकी दुकानें हैं। सभी को यहाँ पे बुलाना उनकी दूसरी जो उनके जो इश्यूज़ होते हैं कि किस तरह से उनका जो मूवमेंट रहेगा उनके जो लेबर्स का उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अलग से टेक्सटाइल मार्केट में उनकी मीटिंग रखी गई जिससे कि सारे लोग वहाँ पे आ सकें। कि बहुत सारे लोग सीसीटीवी कैमरा लगाए तो चालू नहीं है, डीवीआर काम नहीं कर रहे हैं, जो है रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, या अलार्म लगाए तो अलार्म काम नहीं कर रहे हैं, जीपीएस वगैरह जो यूज़ करते हैं अपने ये लोग मूवमेंट जब करते हैं अपना जोखम का वो काम नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें आज चर्चा हुई कि इमीडिएटली आज अपडेट कर लें आप लोग और उसी के लिए हमारे जो थाना मलदार जितने भी एसएचओज़ हैं उनको बोला गया कि विदिन 1 या 2 दिन में ये सब इंश्योर कर लें कि सीसीटीवी कैमरा प्रॉपरली काम कर रहे हो और कैमरा का एक व्यू जो है बाहर रोड की तरफ रहे जिससे रोड से कौन आ जा रहा है उसको देखा जा सके। इन सारी चीज़ों को हम लोग 1-2 दिन के अंदर पूरा कर लेंगे। સુરતના સચિન જીઆઈડીસી પોલીસે શરૂ કર્યું વિસ્તારમાં જનજાગૃતિ અભિયાન। જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પીસીઆર વાનમાંથી લાઉડસ્પીકર દ્વારા ભીડભાડવાળી બજારોમાં જઈ લોકોને કિંમતી સામાન કેવી રીતે સાચવવો તેની માહિતી આપી। દિવાળીના તહેવારમાં બજારોમાં લોકોને ખરીદી માટે લાગે છે જમાવડો, ત્યારે પોતાનો કિંમતી સામાન કેવી રીતે સુરક્ષિત રાખવો તેની માહિતી અપાઈ હતી।
के दौरान आप अभी भीड़ भाड़ वाले एरिया में, जैसे कि ये भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो ये ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पे कोई अनजान आदमी दिखे तो पुलिस का संपर्क करें और मार्केट में आपका कीमती सामान और अपने बच्चों का, खास करके छोटे बच्चों का ध्यान रखें और पुलिस का संपर्क करें, क्योंकि पुलिस तो आपके हमारे पेट्रोलिंग में रहती ही है, रात दिन आपकी सेवा में हम हाजिरी है। तो सभी नागरिकों से भी हमारी अपील है कि बाज़ारों में घूमते समय अपने बच्चों का खास ध्यान रखें और अपना कीमती सामान भी संभाल के रखें। अगर कोई अनजान आदमी आपको डाउट लगता है कि भाई ये चोर जैसा लग रहा है या कुछ हो, तो तुरंत ही आप 100 नंबर पे कॉल कर सकते हो या हमारे पुलिस स्टेशन का संपर्क कर सकते हो। हमारे अधिकारी श्री जो होते हैं उनका भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। खास ये बात ध्यान रखनी है। अभी तीसरा चौथा मुद्दा, आप पर कोई अनजान नंबर से फ़ोन आए या कोई मैसेज आए तो उस अनजान नंबर पे जो बोले कि OTP दो या कोई मैसेज पे आप लिंक ओपन करो, ये सब नहीं करना है, क्योंकि आपको उससे आपका पैसा बैंक से जा सकता है। तो अगर ऐसा कोई किसी के साथ होता है तो एक टोल फ्री नंबर है हमारा पुलिस का, साइबर क्राइम का, 1930 पे संपर्क करें। 1930 नंबर पे आप कोई आपके साथ फ्रॉड होता है तो 1930 पे आप कॉल कर सकते हैं या हमारा नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आप संपर्क कर सकते हैं। ये बात का ध्यान रखें। और दरमियान बैंकों में और ज्वेलर्स की दुकान पे अब भीड़ भाड़ होती है अभी मार्केटों में, तो ज्वेलर्स की दुकानें पर आते जाते आपके आसपास कोई अनजान शख्स दिखाई दे तो पुलिस का, खास करके पुलिस का संपर्क करें और उसकी बातों में ना आए। और कोई बैंक में आप जाओ तो कोई आपको बोले कि मैं ATM में आपसे पैसे निकाल के देता हूँ, तो ये भी ना करें और अपना पासबुक और ATM कार्ड भी आप संभाल के रखिए, बराबर। और बैंकों में जाते पैसे निकालने या जमा करते समय तो कोई बोले आपको कि मैं रुमाल में लपेट के आपको पैसे देता हूँ, हमें ये आपका पैसा रखो, ये करो, तो ये ऐसा कुछ करना नहीं है। वो उसमें फ्रॉड हो सकता है, आपका पैसा वो लेके जाएगा और आपको कागज़ की गड्डी थमा के चला जाएगा। तो आप भी सतर्क रहें और सावधान रहें। और आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपको पता है कि अभी पवित्र त्यौहार दिवाली का त्यौहार आने वाला है, तो उसके दरमियान आपके परिवार के साथ आप बाहर गांव जाओगे तो आपके घरों के अंदर कोई कीमती सामान नहीं रखना है, बराबर। घर के अंदर सामान, कीमती सामान, पैसा, ज्वेलरी, कुछ भी हो वो चीज़ नहीं रखना है, वो बैंक के लॉकरों में जमा करवाना है, बराबर। और आप जाओगे तो आपके आजू बाजू पड़ोस के जो आपके विश्वासू लोग होंगे उनको आप संपर्क करके जाएंगे कि हम इतने दिन के लिए जा रहे हैं। और अगर ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हो, महीना 2 महीने के लिए, तो हमारे सचिन GIDC पुलिस स्टेशन के अंदर हमको संपर्क करके जाइए ताकि हम हमारी पेट्रोलिंग उस एरिया में बढ़ा सकें, ठीक है। अभी दूसरा मुद्दा, सब बाज़ारों में, मार्केटों में जाएंगे तो आप अपनी गाड़ी पे बैठ के जाते हो और अगर रास्ते में आपको कोई बोले कि भाई आपका सामान गिर गया या आपका ब्रेक गाड़ी पंचर हो गया या आपका ऑयल लीकेज हो रहा है, ऐसा अगर आपको कोई बोलता है तो तभी तुरंत रुकना नहीं है, क्योंकि वो चीटर भी हो सकता है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, बराबर। ऐसे लोग अगर आपको दिखे तो पुलिस स्टेशन का संपर्क करें, बराबर। अभी मुद्दा 3, ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ તંત્રની પોલખોરી અને ઉઘડો લીધો। બાલસમોટ હિલ સ્ટેશન બનાવવાના ઇકો ટુરિઝમ પ્રોજેક્ટના ખાતમુહૂર્ત કાર્યક્રમમાં વનમંત્રી મુકેશ પટેલ, સાંસદ ધારાસભ્યની ઉપસ્થિતિમાં વન અધિકારીઓને જાહેર મંચ પર ઉઘડો લેતા ચૈતર વસાવા, પ્રોજેક્ટના ખાતમુહૂર્ત પહેલા જ ગ્રામસભા અને વન અધિકારીઓની સમિતિની સહમતિ લેવી જોઈએ। આદિવાસીઓના ભોગે વિકાસ થશે તો અમને સહેમત નથી। ચૈતર વસાવાએ જણાવ્યું કે પર્યટન સ્થળનો વિકાસ સ્થાનિક લોકોની ભાગીદારી અને રોજગારીની થશે તો અમે સહમતિ આપશું। બાલસમોટ હિલ સ્ટેશન પર કોર્પોરેટર જગતની નજર છે। અહીંની 303 એકર જમીન હાઉસિંગ સોસાયટીને ફાળવવામાં આવી છે, જેમાં આદિવાસી પરિવારોને ખેતી કરે છે। અમે 1 ઇંચ પણ જમીન આપીશું નહીં તેવું જણાવ્યું હતું। કહ્યું હતું કે વિકાસ કરો અને રોજગારી આપો, પણ અમારી જમીન પર નજર ન રાખો। નાદોદના ધારાસભ્ય શ્રી દર્શનાબેન સાહેબ, પૂર્વ મંત્રી મોતીભાઈ સાહેબ અને મંચસ્થ તમામ પદાધિકારીઓ, ચૂંટાયેલા લોકપ્રતિનિધિઓ, હવે આટલો મોટો કાર્યક્રમ કરીએ જે સરકારનો કાર્યક્રમ છે, અમે અહીંયા ફોટો પડાવવા આવ્યા છે કે હે?
તમારું જંગલ ખાતું હું ધંધા કરે છે ખબર છે? ગયા વર્ષે સાહેબ આવ્યા હતા, અહીંયા બાજુમાં ઝાડવા રોપી ગયા. ચાલો કેટલા ઝાડવા તૈયાર છે હમણાં જઈએ જોવા. હે ડેડિયાપાડામાં તમે પ્રોગ્રામ કર્યો, 49 લાખનું તમારું કૌશલ્ય વિકાસ કેન્દ્ર તમે ખુલ્લું મૂક્યું. 6 કરોડ રૂપિયા તો તમે વાવતરો ઉતાર્યા છે. ભાડાના ને જમવાના તમારા જંગલ ખાતામાં હું ધંધા ચાલે છે ને ભાઈ, બધું ખબર છે. બરાબર છે. અહીંયા આપણે આ પેડ જેટલા પણ રોપીએ છીએ બધા સચવાવા જોઈએ. ફોરેસ્ટ વિભાગની જવાબદારી છે ભાઈ. વન સમિતિને સાથે રાખીને ગયા વર્ષે તમે મુકેશ પટેલ સાહેબને બોલાવી લાવ્યા, સાહેબે ઉદઘાટન કર્યું. આજે જોવા જઈએ આપણે કેટલા ઝાડવા તૈયાર છે, ત્યાં કેટલા ઝાડવા તમે સાચવ્યા છે. આ શિડ્યુલ એરિયા છે, અભયારણ્ય છે, અનુસૂચિ 5 લાગે છે. તમે હમણાં પ્રોજેક્ટ લઈને આવ્યા છો તેની વાત તો કરતા નથી. માલસામોટમાં 40 કરોડનો પ્રોજેક્ટ લાવ્યા, તમે 400 કરોડનો લાવો. મેં તો એવું કેમ છું મોદી સાહેબને લઈ આવીને ઉદઘાટન કરીએ. અમને વાંધો નથી, વિકાસ સાથે અમને જરાય વાંધો નથી, પણ જે રીતે અમને કેવડિયામાં રોજગાર આપીશું, પ્રવાસન કરીશું. અમારા આજે માતા બહેનો ત્યાં રડે છે, ત્યારે કેમ કોણ જોવા નથી આવતું? સાપુતારા હિલ સ્ટેશન બનાવવાના નામે ત્યાં મૂળ ગામ હતું તેને તમે નીચે મોકલી આપ્યું છે નવા ગામમાં. આજે લારી ગલ્લા નથી મેકવા દેતા. માલસામોટમાં જે પણ પ્રોજેક્ટ આવ્યો છે અમને વાંધો નથી, તમે વિકાસ કરો. 400 કરોડનો પ્રોજેક્ટ લાવો, 40 કરોડનો નહીં 400 નો લાવો, સહમત છે અમે. પણ અમારા લોકલ ગ્રામ પંચાયતની સહમતિ લો, અમારી વન અધિકારી સમિતિની સહમતિ લો, એમને ભાગીદારીમાં લો. બહારના લોકો આવે, અહીંયા કોર્પોરેટ જગતની નજર છે. 302 એકર જમીન માલસામોટમાં હાઉસિંગ સોસાયટીએ લીધી છે ભાઈ. એ એક પણ ઇંચ જમીન અમે આપીશું નહીં. એ સરકાર અહીંયા આર્મી મૂકી લેજો, લડવા માટે તૈયાર છે અમે. અહીંયા બી તમારો પ્રોજેક્ટ લગાડો, રોજગારી આપો, અમને જરાય વાંધો નથી. પણ કાલે ઉઠીને જમીનો પર અતિક્રમણ થશે, અમારો ખેડી ખાનાર ખેડૂતની જમીન છીનવા છે, તો અમે જંગલ ખાતાને કે કોઈના બાપને અહીંયા ઉભું રહેવા દઈએ. તમારું જંગલ ખાતું 1927 માં આવ્યું છે. અમારા બાપ દાદાની આ જમીન છે. વચ્ચે મારે તો આરેફો આવ્યો હતો પેલો ભાઈ, મને કે મુકેશ પટેલ સાહેબ નો ફોન આવ્યો છે, તમારું ઘર ક્યાં છે મને બતાવો. પૂછી લેજો, આ સાહેબ મનસુખ સાહેબ અમારા ઘરના છે. મીરા ડુંગરીયા, બાવા ડુંગરીયા, ભૂરા ડુંગરીયા કુટુંબનો છું મેં. મારા બાપ દાદાએ 500 એકર જમીન અનામત જંગલ બનાવવા માટે કોલીવાડામાં આપી છે. આજે પણ એના રેકોર્ડ છે, જંગલ ખાતામાં કઢાવી લેજે ભાઈ. બરાબર છે ને? ચૈતર વસાવાના ઘરની એમને પટેલ સાહેબ ને કોઈ પડેલી હોય ને તો ઘરે આવીને બતાવે સરકાર બી. બરાબર, કોઈના બાપથી ડરતા નથી. આદિ અનાદિકાળથી આદિવાસી આ જંગલમાં રહી છે. આ જંગલ અમે હાથેલો છે. વિકાસ કરો ને. અહીંયા માથાવલીમાં આજે માસ્તર નથી. મનસુખ સાહેબ હતા, દર્શનાબેન હતા, કલેક્ટરને કીધું તો અઠવાડિયામાં માસ્તર આવશે, કેમ માસ્તર નથી આવ્યો? અહીંયા સરીબારોમાં રહો નથી, એ કરો ને. એટલે ફોરેસ્ટ વાળા પોતપોતાની ઘરની એજન્સી રાખીને દર વર્ષે 8-10 કરોડ રૂપિયા ઉતારે છે. ડેડિયાપાડા રેન્જ હોય કે સોડાપાડા રેન્જ, તમે જંગલો બનાવવાના હોય તો બનાવો, તમારું ખાતું બંધ કરી દો. બરાબર છે? એ તમારા ટ્રાઇબલના તમારા બાપના પૈસા નથી. આ ડીસીએફ સાહેબ તમારી રૂબરૂમાં કેમ છું, કૌશલ્યવર્ધક કેન્દ્ર તમે ડેડિયાપાડા બનાવ્યું, 49 લાખમાં બનાવ્યું, એને ખુલ્લું મૂકવાનું તમે 6 કરોડ રૂપિયા ઉતારી લીધા. કેમ ભાઈ? આ તમારી સિસ્ટમ છે. એટલે પ્રોટોકોલ સાચવજો. તમારા મગજમાં કોઈ ધુમાડો હોય ને ભાઈ કાઢી નાખજો. બરાબર છે? એક ઝાડ અહીંયા ઉભું થવું જોઈએ. વિકાસ થાય, ડેવલપિંગ કરો, ટુરિઝમ આવશે, ટુરિસ્ટો આવશે, 2 પૈસા વાપરશે, અમારા લોકોને રોજગારી મળશે, અમે સંમત છે. પણ કાલે ઉઠીને જમીનો લેવાની કોઈ વાત કરશો ને તો પછી અમે છે ને તમે છે. આ તમને કીધું. બરાબર છે? એટલે આવી રીતના બીજી વાર ભૂલ નહીં કરતા ભાઈ. મેનેજમેન્ટ કહી દીધું તમને. ધન્યવાદ. સપ્ટેમ્બર મહિનામાં સુરતની કિરણ હોસ્પિટલમાં બ્રેન ડેડ જાહેર કરાયેલી 9 વર્ષીય રીના મોબીના મિસ્ત્રીની હાથનું દાન ડોનેટ લાઈફ સંસ્થાના માધ્યમથી કરવામાં આવ્યું, જે સમગ્ર વિશ્વમાં સૌથી નાની ઉંમર એટલે કે 9 વર્ષની બાળકીના હાથનું દાન કરવાની સૌપ્રથમ ઘટના બની. મિસ્ત્રી પરિવારે બહારસોઈ 9 વર્ષીય દીકરી સ્વર્ગસ્થ રિયાના હાથ સહિત ફેફસા, લીવર, કિડनी અને ચક્ષુનું दान કરી 7 વ્યક્તિઓને नवजीवन આપ્યું. हमारा डोनेट लाइफ का मिशन एक ही है कि हमारे देश में हर साल लाखों लोगों की मौत समयसर ऑर्गन न मिलने की वजह से हो रही है, तो उनको नया जीवन कैसे दिया जाए. 2047 में हमारा देश शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तभी हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अंग न मिलने की वजह से नहीं होगी. ये हमारा मिशन है.
कि हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके अकस्मात या में दोनों हाथ कट जाते हैं। हमारे देश में कितने ऐसे जवान हैं कि जो बॉम्ब ब्लास्ट में दोनों हाथ उनके भी कट जाते हैं और वो व्यक्ति अपना सामान्य जीवन नहीं जी पाते हैं। किसी का दोनों हाथ नहीं है, उनका जीवन कैसे होगा? वो व्यक्ति स्वावलंबी जीवन के बजाय उनको परावलंबी जीवन जीना पड़ता है। तो हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स तो डोनेट करवाते हैं, तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स का भी डोनेशंस क्यों नहीं हुआ? तो लोगों को ये समझाया और लोग समझने भी लगे कि सही बात है कि शरीर तो राखी हो जाने वाला है, उससे अच्छा है कि जो किसी को काम आ सके। आज जिन डोनर ने भी ये सब किया है उनको भी मैं नतमस्तक वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सलाम भी करता हूँ, क्योंकि उनकी ही वजह से आज रिया की वजह से आपको भी एक हैंड्स लगा और आपको एक क्वालिटी लाइफ मिलेगी और आज आप लोगों के लिए भी एक ब्रांड एम्बेसडर बनोगी। हमारे देश ने भी आज इतनी प्रगति की है। आज 10 साल पहले कुछ सोचे कि भारत में हैंड्स ट्रांसप्लांट हो सकता है तो लोग बोलेंगे नहीं होगा, लेकिन आज डॉक्टर साद भाई जैसे डॉक्टर की वजह से आज हमारे देश में हैंड्स ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल हुआ है और आज ग्लोबल अस्पताल में ये काम हो रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। आपकी लंबी उम्र के लिए, क्वालिटी लाइफ के लिए भगवान द्वारकाधीश को प्रार्थना भी करता हूँ और आज रिया के परिवार को भी बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक मिसाल कायम की है, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची का हैंड्स का डोनेशंस करना बहुत ही मुश्किल होता है और ये डोनेशन उन लोगों ने सामने से किया है। ऐसा नहीं कि हमें काउंसलिंग करने की ज़रूरत पड़ी है, वो सामने से बोला कि हमें ये करना है। ये बहुत बड़ी बात है। आज हमें एक खुशी भी है कि जो अवेयरनेस हमने 20 सालों में फैलाई है, आज लोग सामने से आते हैं कि नहीं हमें ये करना है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आपको ट्रांसप्लांट से क्वालिटी लाइफ मिली है, आप ब्रांड एम्बेसडर हो, आप भी आगे चल के लोगों में ऑर्गन डोनेशंस का मैसेज, जो अंगदान, जीवन दान और आपकी क्वालिटी लाइफ लोगों। हेलो एवरीवन, मैं अनंता अहमद हूँ। आई एम 15 years old। सो 2 साल पहले अक्टूबर 2022 में मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था। मुझे 11,000 वोल्ट के वायर से करंट लगा था, जिसके वजह से मैंने अपना राइट हैंड खो दिया। एंड बट तभी भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं लोगों को मोटिवेट करती थी, अपनी सारी एक्टिविटीज़ करती थी, डांस करती थी, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ करती थी जिससे मैं खुश हूँ एंड अपने आप को अपना कॉन्फिडेंस रखती थी। बट मेरे पास एक ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे मैं एक न्यू रीज़न नहीं था मेरे पास जिससे मैं एकदम खुश हो जाऊँ या जिससे मेरा मॉरल अप हो जाए। मुझे हैंड ट्रांसप्लांट के बारे में पता चला। मैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स गई थी एंड लेकिन मुझे बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता था कि नहीं हो पाएगा, बिकॉज एल्बो के ऊपर लेवल है मेरा एम्प्यूटेट हुआ हुआ और अंडर 18 एंड मैनी रीजंस वर देयर। लेकिन मुझे वो दिन याद है कि एक दिन डॉक्टर नीलेश साद भाई का मेरे पास मैसेज आया कि वी कैन ट्राई फॉर हैंड ट्रांसप्लांट एंड लेट्स मीट। वो मेरे लाइफ का लकीएस्ट डे है, बिकॉज़ मैं उस दिन डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने मुझे बताया कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होंगे आपको, आप अंडर 18 भी हो। बट मैंने डॉक्टर को बोला आप कुछ भी करके प्लीज़ मेरा हैंड ट्रांसप्लांट कर दीजिए। एंड डॉक्टर ने मुझे एक होप दी उस टाइम कि अब मैं करके दिखाऊंगा आपका हैंड ट्रांसप्लांट। एंड उस दिन से मेरे अंदर एक होप उजागर हुई एंड एक दिन मेरा डोनर आ गया। एंड सबसे बड़ा थैंक मैं डोनर के फैमिली को करना चाहती हूँ कि उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने एक एक्सटर्नल ऑर्गन डोनेट किया एंड मुझे एक सेकेंड लाइफ दी। सो थैंक यू सो मच। डोनेट लाइफ ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है काफ़ी लोगों की लाइफ में। जैसे मेरी लाइफ में उन्होंने मुझे एक सेकेंड लाइफ दी एंड उनके वजह से मुझे अभी एक हैंड मिल पाया है। सो वो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की जान भी बचाते हैं एंड एक सेकेंड लाइफ मिलती है लोगों को। तो मेरे हैंड के जो डोनर है, शी इज़ द यंगेस्ट टू डोनेट एन हैंड
and even I am the youngest to get a shoulder level hand transplant done. So thank you so much, donor and their family. સુરતમાં રાજમાર્ગ પર ચાલી રહેલી મેટ્રોની કામગીરીથી ત્રસ્ત વેપારીઓ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા. સામે દિવાળીએ વેપારીઓ થયા છે પરેશાન. બાગડ રાજમાર્ગ પર આવેલી મસ્કતી હોસ્પિટલ પાસે મેટ્રો સ્ટેશનના કામને કારણે વેપારીઓને હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે. વેપારીઓને પડી રહેલી મુશ્કેલી અંગે વારંવાર રજૂઆત છતાં એએમઆરસીના અધિકારીઓના ખડકાનના આક્ષેપ કરાયા છે. હાલ ચાલી રહેલી મેટ્રોની કામગીરીની પગલે સામે દિવાળીએ વેપારીઓના ધંધા વેપારમાં પણ મુશ્કેલી થશે, જેની મુદ્દત પૂર્ણ થયા બાદ પણ વળતર આપવાનું બંધ કર્યાનો પણ આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. હું પ્રિયાંશી ગાંધી, મારા હસબન્ડની ટાવર રોડ પર રાજમાર્ગ પર સ્ટેશનરીની શોપ છે. એ છેલ્લા 70 વર્ષની પેઢીની છે. હવે સાહેબ, રાજમાર્ગ પર જે મેટ્રોનું કામ ચાલુ છે, જેના લીધે જે બધા કારીગરોને, દુકાનદારોને, વેપારીઓને જે પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, એ આપ ઇમેજિન પણ ના કરી શકો. કઈ રીતે એ લોકો પગાર કાઢતા હશે કામદારોના, એ લોકોનું ઘર કઈ રીતે ચલાવતા હશે, એ લોકોના બાળકનો ખર્ચો કઈ રીતે કરતા હશે. અને મોંઘવારી તો તમે જાણતા જ હશો, દિવસે દિવસે બધી જ વસ્તુના ભાવ વધે છે. દૂધથી માંડી લો તે બધા, પેટ્રોલથી માંડી બધાના જ ભાવ વધે છે. તો આ ભાવ વધારામાં જ્યારે રાજમાર્ગનો રસ્તો બંધ હોય અને મેટ્રોનું કામ ચાલતું હોય અને એમાં અમને રસ્તો ના મળતો હોય, તો તમે સમજી શકો છો કે કેવી રીતે વેપારીની પરિસ્થિતિ હશે. તો અમારી એટલી જ એક રિક્વેસ્ટ છે કે આ તમે પૂરે રસ્તો ખોલો, કે પછી અમને વળતર ચૂકવો. વળતર ચૂકવશો તો બધા નાના વેપારી, મોટા વેપારી, જેમનો ઘરનો ખર્ચો જે 2 ટાઈમ ખાઈ શકશે એટલી પરિસ્થિતિ સચવાઈ શકશે. નહીં તો ઘણા બધા કારીગરો બેકાર બનશે, ઘણા બધા કારીગરો છૂટા થશે અને એની પરિસ્થિતિ ભવિષ્યમાં શું થઈ શકે, કેટલી બેકારીનો દર વધશે, એ તમે ઇમેજિન ના કરી શકશો. વિકાસ માટે રસ્તો બંધ કરાયો છે એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. વિકાસમાં અમને સાહેબ કોઈ જ તકલીફ નથી. અમે મેટ્રોને પણ સહકાર આપવા તૈયાર જ છીએ. અમે ના પાડતા જ નથી કે તમે નહીં કરો કામ. તમે કામ કરો, પણ ચોક્કસ સમય મર્યાદા આપો, એટલા સમયમાં પૂરું કરો, અને જેટલો સમય બંધ રાખો છો એટલા સમય માટેનું અમને થોડું વળતર આપો, કે જેથી અમારું ઘર ચાલી શકે, 2 ટાઈમ બાળકો સાથે ખાઈ શકીએ અમે. આખું શહેર દિવાળીની તૈયારીઓમાં લાગ્યું છે, તમે શું કહેશો? આખું શહેર દિવાળીની તૈયારીમાં લાગ્યું. જ્યારે સુરત, જેની અંદર ટાવરનો રાજમાર્ગ જે કહેવાતું દિવાળી માટે એકદમ, કે બધી સુરતના લોકો રાજમાર્ગ પર આવીને શોપિંગ કરતા હોય, જ્યારે રસ્તો જ બંધ હોય તો પબ્લિક બીજે ડાયવર્ટ થઈ જ જવાનું છે, બીજી જગાએ જવાનું જ છે. અને જ્યારે એક જગાએ રસ્તો બંધ થઈ જાય, દુકાન પર આવતા માણસ બંધ થઈ જાય, એ પછી હવે ક્યારે આવશે રસ્તો ખોલ્યા પછી પણ, એ પણ કોઈ ચોક્કસ નથી સર. મારું નામ અંકુર ગાંધી. શું રજૂઆત લઈને આવ્યા? અમારી રજૂઆત છે કે અમારી 70-75 વર્ષ જૂની પેઢી છે, બરાબર છે. હમણાં અમારો ટોટલી ધંધો બંધ છે. લોકોની દિવાળી છે પણ અમારું દિવાળું નીકળી ગયું છે. તમારે જીએમઆરસીને ને માનનીય મુખ્યમંત્રીને જે મોટા હોદ્દા પર બેઠેલા છે તેમને એક જ વિનંતી છે કે આખો રસ્તો ખોલી આપો, તો અમારું કોમ્પેન્સેશન ફરીથી ચાલુ કરો. વિસ્તારમાં કેટલા સમયથી દુકાન બંધ છે? અમારી છેલ્લા 19 મહિના થયા. ટાવર રોડ મસ્કતી હોસ્પિટલની સામે મારી દુકાન છે. ટાવર રોડ રાજમાર્ગ કહેવાય. છેલ્લા 19 મહિનાથી એ બંધ છે. આપને વળતર મળતું હતું? વળતર મળતું હતું, પણ એ વળતરમાં તો કેવું હતું કે સાહેબ, માણસોનો પગાર ને એમાં જ બધું ચાલી રહ્યું હતું. અમારું ઘર ખર્ચ કરવા માટે અમારી ઘરની મૂડી નાખવી પડે એવી પરિસ્થિતિ હતી. અત્યારે ઘરમાં કેવી રીતે ચલાવી રહ્યા છો? બહુ જ ખરાબ હાલત છે કે ફાધર મધરને હાર્ટનો પ્રોબ્લેમ છે, દવાનો ખર્ચો, મારું છોકરીનું સ્કૂલનું લોન છે, ઘરની લોન છે, બધું ભરવાનું બહુ જ અઘરું પડી રહેલું છે. પોલીસ પ્રશાસન અમને ન્યાય આપી રહ્યું નથી. બહેરાજમાં હિંસામાં માર્યા ગયેલા રામગોપાલ મિશ્રાની પત્નીએ સરકાર પર આક્ષેપ કર્યો છે. સાથે જ સમાજવાદી પાર્ટીના અખિલેશ યાદવે પણ સરકાર પર आक्षेप करता શું બોલ્યા સાંભળો। नमस्ते गाइस, मैं हूँ लोली मिश्रा, राम गोपाल की पत्नी, जिनकी आज से 4 दिन पहले हत्या हुई है। हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। और क्या ही कहें, पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है। जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है।
और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले, उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप। और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया है इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। तो ये कहां का लॉ एंड ऑर्डर है, कहां की ये व्यवस्था है जहां पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं। और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है। जो घटना हुई दुखद हुई, जो घटना हुई दुखद थी और ऐसी घटना समाज में न हो। जो वहां पर फेलियर था, हमारे साथी ये पूछ रहे हैं कि आप क्या करते या क्या परिवार से मिलेंगे। जो दुखी परिवार होगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन सवाल ये वही खड़ा हो जाता है कि सरकार की नज़र में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार, जो अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल, सरकार उसी पे काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल। ये आम लोग जानते हैं, आम लोग ये बात जानते हैं। और आप तो पत्रकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, और पड़ोसी जिले का मामला है। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि ये घटना हुई नहीं है, घटना कराई गई है। और कराई गई के लिए दोषी कौन होगा? अगर जान गई है किसी की भी, हम दुख में शामिल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी मिल सकते हैं, लेकिन कराई किसने है इस पे आप लोग बेहतर जानते होंगे। यहाँ एक कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जो न जानता हो कि ये घटना रोकी जा सकती थी। किसी की जान नहीं जाती। अगर जान गई है, हम दुख बांटने से ज्यादा, जो आज सरकार भी दुख बांट रही है, सरकार को इस बात पे दुख करना चाहिए था कि घटना क्यों हो गई, होनी नहीं चाहिए थी। सर, सरफराज की बहन का कहना ये है कि कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आज एनकाउंटर दिखाया, कल गिरफ्तार। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस को बिगाड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को बेहतर करने के लिए डायल 100 से लेकर के और सुविधाएं दी। कई कार्यालय इन पुलिस के पास नहीं थे, वो कार्यालय दिए। कई इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए सरकार ने। लेकिन जो पुलिस का तरीका हो गया है, जब कभी भी जांच होगी, बहुत से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल भी जाएंगे। और आपको तो वो दिन भी याद होगा जिस समय अखबार में निकला था, इसी प्रदेश के, इसी सरकार के सबसे पहले डीजीपी, उन्होंने कहा कि ये पुलिस जो आज इनकाउंटर कर रही है, कल इनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई देगा। जो इनकी सरकार के पहले डीजीपी हों, वो इन पर सवाल खड़ा कर रहे हों कि ये जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं, इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या हो रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो लोग ये हत्याएं कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और मुझे सुनने में यहाँ तक आया है, आप बेहतर बताना इस बात को, कि जिस व्यक्ति ने पहला वीडियो वायरल किया उस प्रोसेशन का, उस पत्रकार के हाथ या पैर में बहुत चोटें आई हैं। उसमें बीजेपी के लोगों ने उसे बहुत मारा है।
अगर बीजेपी के लोग पत्रकार को मार रहे हैं या बीजेपी के लोग पत्रकार को जेल भिजवा रहे झूठे मुकदमे में, तो समझिए क्या छिपा रहे हैं, कुछ तो छिपा रहे हैं ना। ભાજપ નફરત ફેલાવીને ઉત્તર પ્રદેશની ચૂંટણી જીતવા માંગે છે। વડાપ્રધાન મોદી અને યોગી સહિતના ભાજપના તમામ મોટા નેતાઓ કહે છે કે ઉત્તર પ્રદેશની કાયદા અને વ્યવસ્થા ઘણી સારી છે। ગૃહ રાજ્યમંત્રી અમિત શાહનું કહેવું છે કે ઉત્તર પ્રદેશમાં રાત્રે પણ મહિલાઓ સુરક્ષિત રીતે ફરી શકે જો એમ હોય તો। बार बार डबल इंजन की सरकार में प्रधानमंत्री जी हों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री हों अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों योगी आदित्यनाथ जी, बार बार दावा करते हैं एकदम कि यूपी में कानून व्यवस्था बिल्कुल मजबूत है। यूपी के अंदर कानून व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। यूपी में बिल्कुल सख्त कानून व्यवस्था है। और एक बार तो देश के गृह मंत्री ने कहा कि रात को 12 बजे भी महिलाएं निर्भीक होकर घूम सकती हैं उत्तर प्रदेश में, इतनी अच्छी कानून व्यवस्था है। अगर कानून व्यवस्था अच्छी है तो क्या हो रहा है बहराइच के अंदर, क्या हो रहा है देवरिया में, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? अगर कानून व्यवस्था अच्छी होने का उदाहरण यह है कि लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होंगे, तो किस बात की कानून व्यवस्था अच्छी है? कौन सी कानून व्यवस्था अच्छी है? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जब जब इस देश के अंदर चुनाव हारती है, चुनावी ताकत उनकी कमजोर होती है, नफरत फैलाते हैं, झगड़े कराते हैं। लोकसभा के चुनाव में बुरी तरीके से हारी है भारतीय जनता पार्टी और अब नफरत फैला के उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जीतना चाहती है। नफरत फैला के चुनावी राजनीति में सफलता लेना चाहती है। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, झगड़े करा के फसाद करा के चुनावी राजनीति में सफलता लेना है। चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे अब बहराइच हो, देवरिया हो। नफरत फैलाओ और राज करो, झगड़ा कराओ और राज करो, फसाद कराओ और राज करो। ये भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला हो गया। क्योंकि स्कूल बनाना नहीं है, अस्पताल बनाना नहीं है, सड़कें बनाना नहीं है, इंडस्ट्री लगाना नहीं है, उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पे ले जाना नहीं है, किसानों के फसल का दाम देना नहीं है, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना नहीं है, नौजवान बेरोजगारी के कारण यूपी में आत्महत्या करेगा, किसान कर्ज के कारण आत्महत्या करेगा। लेकिन सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला है नफरत फैलाओ, झगड़ा कराओ और राज करो। ये रास्ता बना लिया है बीजेपी ने। और कौन लोग मारे जा रहे हैं इस झगड़े में? अमित शाह का बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, यूपी का नौजवान झगड़ा करेगा। अमित शाह का लड़का वो जाके दुबई के शेखों के साथ धंधा करेगा, रोजगार करेगा, बिजनेस करेगा हजारों करोड़ का, और प्रधानमंत्री जी उसके व्यापार को प्रमोशन देने के लिए विदेशों में जाके मस्जिद में भी जाके गले मिल लेंगे। लेकिन यूपी में झगड़ा कराना है। यूपी के नौजवानों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, उनके रोजगार की कोई चिंता नहीं है। कभी आपने देखा अडानी का लड़का किसी दंगे फसाद में, अमित शाह का लड़का किसी दंगे फसाद में, किसी बीजेपी के नेता मंत्री सांसद विधायक का लड़का किसी दंगे फसाद में देखा आपने?
नफरत फैला के यूपी के लोगों को बर्बाद करना है, उनकी जिंदगी को बर्बाद करना है, ये इनका काम है। भारत के प्रधानमंत्री एक चुनावी रैली के अंदर उत्तर प्रदेश में कहते हैं, कभी नहीं बताते वो, इतने स्कूल बनाएंगे यूपी के लोगों हमें जिता दो, इतने अस्पताल बनाएंगे यूपी के लोगों हमें जिता दो, इतनी फैक्ट्री लगाएंगे, इतना रोजगार देंगे, इतनी इंडस्ट्री लगाएंगे, हमको जिता दो। नहीं कहते कभी। क्या कहते हैं? कहते हैं गांव गांव में शमशान बनाना है। ये भारत के प्रधानमंत्री की सोच है, डबल इंजन की सरकार के जो मालिक हैं। कहते हैं गांव गांव में शमशान बनाना है। अगर कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिस देश का प्रधानमंत्री शमशान बनाने की सोच रखेगा, वो यूपी के लोगों का भला नहीं कर सकता, वो यूपी के नौजवानों का भला नहीं कर सकता। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन हजारों करोड़ रुपए का ठेका उत्तर प्रदेश में कौन से लोग कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त कर रहे हैं। चले जाइए काशी में देख लीजिए, अयोध्या में देख लीजिए, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे हाईवे देख लीजिए, जल जीवन मिशन के ठेके देख लीजिए, कौन कर रहा है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त कर रहे हैं। पूरे दुनिया में घूम घूम के अडानी को ठेका दिलाने का काम भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, हजारों करोड़ रुपए देश का लूट रहे हैं लोग, बैंकों को खाली कर रहे हैं। देश की सारी संपत्तियां इन लोगों के नाम पे करते जा रहे हैं। और आपको क्या कर रहे हैं? झगड़ा करो, लड़ाई करो, मारपीट करो, नफरत फैलाओ। और किस हिंदुत्व की बात आप करते हैं? आपके लिए हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है? आप किसको हिंदू मानते हैं और किसको नहीं मानते हैं? आपने हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को अयोध्या के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। आपने मंदिर के उद्घाटन में मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया, किस इसलिए कि वो आदिवासी समाज से आती हैं। आपके लिए इस देश का पिछड़ा, दलित, आदिवासी ये हिंदू नहीं है, उसके ऊपर मध्य प्रदेश में पेशाब किया जाएगा आदिवासी के सिर पे, और दलित को, सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा, और गुजरात में अंगूठा काट लिया जाएगा दलित के बच्चे का गेंद छूने पे। वो हिंदू नहीं है। जब जब पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, इस देश के वंचित समाज के लोगों का संगठन और एकता मजबूत होती है, नफरत फैला के, झगड़े करा के राजनीति करना चाहती है बीजेपी। बहराइच में जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, पीड़ादायक है हम सब के लिए। और मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, हिंदू हो या मुसलमान, जो भी भड़काने की बात करे, कानून के दायरे में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समाज में ऐसे भड़काऊ भाषण देने और लोगों को लड़ाने और झगड़ा कराने की छूट किसी को नहीं होनी चाहिए, चाहे हिंदू संगठन के लोग हों, चाहे मुसलमान संगठन के लोग हों। गोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या 100% गलत है, उस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए हत्यारों के खिलाफ। और भड़काने की राजनीति जिन लोगों ने किया, उसकी जांच करा के उन सारे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने साजिश करके नफरत फैलाने का काम किया, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए अब हम सब लोगों को यह सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा। अगर आप झगड़े, दंगे, फसाद कराएंगे, कौन सा व्यापारी, कौन सा फैक्ट्री वाला, कौन सा इंडस्ट्री वाला यहां पर निवेश करने के लिए आएगा? बताइए, कहां से आपको रोजगार मिलेगा? कौन इस प्रदेश में पैसा लगाना चाहेगा यहां के विकास के लिए?
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી નવી દિલ્હીના વિજ્ઞાન ભવનમાં આંતરરાષ્ટ્રીય અભિધમ્મા દિવસની ઉજવણીમાં ભાગ લીધો અને પાલીને શાસ્ત્રીય ભાષા તરીકે માન્યતા આપી બૌદ્ધ ધર્મની ધરોહર પર પણ વિચારો શેર કરશે। हमने अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए लाल किले से पंच प्राण का विजन देश के सामने रखा है। पंच प्राण यानी विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, देश की एकता, कर्तव्यों का पालन और अपनी विरासत पर गर्व। इसलिए आज भारत तेज विकास और समृद्ध विरासत के दोनों संकल्पों को एक साथ सिद्ध करने में जुटा हुआ है। भगवान बुद्ध से जुड़ी विरासत का संरक्षण इस अभियान की प्राथमिकता है। आप देखिए, हम भारत और नेपाल में भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को बुद्ध सर्किट के रूप में विकसित कर रहे हैं। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शुरू किया गया है। लुम्बिनी में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का निर्माण हो रहा है। लुम्बिनी में ही बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में हमने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चेयर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज की स्थापना भी की है। बोध गया, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, सांची, सतना और रीवा जैसे कई स्थानों पर कितने ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 3 दिन बाद 20 अक्टूबर को मैं वाराणसी जा रहा हूं, जहां सारनाथ में हुए अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा। हम नए निर्माण के साथ साथ अपने अतीत को भी सुरक्षित कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हम 600 से ज्यादा प्राचीन धरोहरों, कलाकृतियों और अवशेषों को दुनिया के अलग अलग देशों से वापस भारत लाए हैं। 600 से ज्यादा, और इनमें से कई अवशेष बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी बुद्ध की विरासत के पुनर्जागरण में भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता को नए सिरे से प्रस्तुत कर रहा है। इस वर्ष अभिधम्म दिवस के आयोजन के एक साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी जुड़ी है। भगवान बुद्ध के अभिधम्म, उनकी वाणी, उनकी शिक्षाएं, जिस पाली भाषा में ये विरासत विश्व को मिली है, इसी महीने भारत सरकार ने उसे क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। और इसलिए आज ये अवसर और भी खास हो जाता है। पाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का ये दर्जा, शास्त्रीय भाषा का ये दर्जा, पाली भाषा का ये सम्मान भगवान बुद्ध की महान विरासत का सम्मान है। आप सभी जानते हैं, अभिधम्म धम्म के निहित है। धम्म को
उसके मूल भाव को समझने के लिए पाली भाषा का ज्ञान आवश्यक है। धम्म यानी बुद्ध के संदेश, बुद्ध के सिद्धांत। धम्म यानी मानव के अस्तित्व से जुड़े सवालों का समाधान। धम्म यानी मानव मात्र के लिए शांति का मार्ग। धम्म यानी बुद्ध की सर्वकालिक शिक्षाएं, और धम्म यानी समूची मानवता के कल्याण का अटल आश्वासन। पूरा विश्व भगवान बुद्ध के धम्म से प्रकाश लेता रहा है, लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से पाली जैसी प्राचीन भाषा, जिसमें भगवान बुद्ध की मूल वाणी है, वो आज सामान्य प्रयोग में नहीं है। भाषा केवल संवाद का माध्यम भर नहीं होती। भाषा सभ्यता और संस्कृति की आत्मा होती है। हर भाषा से उसके मूल भाव जुड़े होते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध की वाणी को उसके मूल भाव के साथ जीवंत रखने के लिए पाली को जीवंत रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने बड़ी नम्रता पूर्वक ये जिम्मेदारी निभाई है। भगवान बुद्ध के करोड़ों अनुयायियों को, उनकी लाखों भिक्षुकों की अपेक्षा को पूरा करने का हमारा नम्र प्रयास है। मैं इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाषा, साहित्य, कला, अध्यात्म, किसी भी राष्ट्र की ये धरोहरें उसके अस्तित्व को परिभाषित करती हैं। इसलिए आप देखिए, दुनिया के किसी भी देश में कहीं कुछ 100 साल पुरानी चीज मिल भी जाती है तो उसे पूरी दुनिया के सामने गर्व से प्रस्तुत करता है। हर राष्ट्र अपनी हेरिटेज को अपनी पहचान के साथ जोड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत इस दिशा में काफी पीछे छूट गया था। आजादी के पहले भारत की पहचान मिटाने में लगे आक्रमणकारी, और आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता के शिकार लोग भारत में एक ऐसे इकोसिस्टम का कब्जा हो गया था जिसने हमें उल्टी दिशा में धकेलने के लिए काम किया। जो बुद्ध भारत की आत्मा में बसे हैं, आजादी के समय बुद्ध के जिन प्रतीकों को भारत के प्रतीक चिन्हों के तौर पर अंगीकार किया गया, बाद के दशकों में उन्हीं बुद्ध को भूलते चले गए। पाली भाषा को सही स्थान मिलने में 7 दशक ऐसे ही नहीं लगे, लेकिन साथियों, देश
अब उस हीन भावना से मुक्त होकर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। देश इसी बदौलत बड़े फैसले कर रहा है। इसलिए आज एक और पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है, तो साथ ही यही सम्मान मराठी भाषा को भी मिलता है। भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्स धम्म संगाणि मातिका अकुशल धम्म अभ्यागत धम्म सुखाय वेदनाय संपयुद्ध धम्म दुःखाय वेदनाय संपयुद्ध धम्म अदुःखं असुखाय वेदनाय संपयुद्ध धम्म विपाक धम्म विपाक धम्म 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 नेवा विपाक न विपाक धम्म 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 उपादिन्नोपादनीय धम्म अनुपादिन्नोपादनीय धम्म अनुपादिन्न अनुपादनीय धम्म संकिलिट्टा संकिलेशिका धम्म असंकिलिट्टा संकिलेशिका धम्म असंकिलिट्टा संकिलेशिका धम्म सवित्त। ઝારખંડમાં ભાજપાના વિધાનસભા ચૂંટણીના સહ ઇન્ચાર્જ અને આસામના સીએમ હિમંત બિસ્વા શર્મા કહે છે કે સીટ વહેંચણીને લઈને ચર્ચા ચાલી રહી છે। અત્યારે ઓલ ઝારખંડ સ્ટુડન્ટ યુનિયન 10 સીટ પર ચૂંટણી લડશે। જનતા દળ 2 અને 1 સીટ પર લોક जनशक्ति पार्टी એટલે કે એલજીપી અને બાકીની સીટ પર ભાજપ ચૂંટણી લડશે। आगे भी कुछ चर्चा चलेगा, ऐसा नहीं है कि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वही एकदम फाइनल है। कभी कभी परिस्थितियों को देखते हुए नामांकन का समय अभी भी है, कुछ सामान्य परिवर्तन इधर उधर हो भी सकता है और होना भी कभी स्वाभाविक होते हैं, लेकिन जो फिलहाल जहां तक हम पहुंचा हूं वहां तक का बात मैं आप लोगों का सामने रखना चाहता हूं। पहले हम आशु को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आशु लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आशु लड़ेगा। रामगढ़ आशु लड़ेगा। गोमिया आशु लड़ेगा। ईसागढ़ आशु लड़ेगा। मांडू आशु लड़ेगा। जुगसलाई आशु लड़ेगा। दुमरी आशु लड़ेगा। पाकुड़ आशु लड़ेगा। लोहारदगा आशु लड़ेगा। मनोहरपुर आशु लड़ेगा। सो अभी तक जो हमारा चर्चा हुए इस हिसाब से ये 10 सीट आशु लड़ेगा और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आशु अपना उम्मीदवार ये 10 सीट में घोषित करे। जनता दल यू का साथ अभी तक का जो हमारा चर्चा हुआ है वो चर्चा का अनुसार जमशेदपुर वेस्ट और तमार जनता दल यू लड़ेगा। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17 से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगा। 17 थोड़ा मेरा हिंदी कच्चा है और तो मैं आप लोगों को पहले बता, वो आसाम की टोन भी है वो। हाँ, तो वो सीट से लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा और बाकी सीट में 1-2 सीट का एक भी सीट छोड़ के बाकी सीट में स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा। यही सीट का एक मोटा मोटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है
जनता दल यू 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, आशु 10 और बाकी सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही लड़ेगा, कहीं कुछ सरसा में 1-2 इधर उधर हो सकता है, पर मूलतः यही पिक्चर है जो मैं आपको बताने के लिए हमने आप लोगों को निमंत्रण किया था। और मेरा लगता है कि अभी बाबूलाल जी और सुदेश जी दोनों को ये चुनाव का नेतृत्व लेना है और दोनों कैसे चुनाव को आगे बढ़ाएगा दोनों आप लोगों का सामने पेश करेगा। मैं बाबूलाल जी को निमंत्रण करता हूं कि चुनाव का बारे में सुदेश जी और बाबूलाल जी आप। રાજ્યમાં થયેલી ઊંચ દુર્ઘટનામાં બિહારના ડેપ્યુટી સીએમ વિજય કુમાર સિન્હા કહે છે કે સરકારે તેને ખૂબ જ ગંભીરતાથી લીધી છે અને આ પ્રકારનું વાતાવરણ સર્જનારોને બક્ષવામાં આવશે નહીં। સરકાર આની પાછળ કોણ છે તેની પાછળની તપાસ કરી રહી છે। તેમના ચહેરા પણ ખુલ્લા પાડવામાં આવશે। જેઓ બિહારના ગરીબ લોકોના જીવન સાથે રમત રમી રહ્યા છે તેમને કોઈ પણ કિંમતે બક્ષવામાં આવશે નહીં। દારૂનો ધંધો કરનારા લોકો આરજેડીના ઉમેદવાર બને છે। દરેકની સંમતિથી દારૂબંધી લાગુ કરવામાં આવી છે। દરેક વ્યક્તિ તેનો સંપૂર્ણ અમલ કરવા અને આવા ગુનેગારોને બચાવવાની રમત બંધ કરવા સહકાર આપવો જોઈએ। पूरी तरह से गंभीरता से ली है और इस तरह के वातावरण बनाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उस जिले के अंदर पहले भी इस तरह की घटना घटित हुआ था, उसके बाद जब कार्रवाई हुई तो बहुत दिनों तक शांत रहा और जो लोग इसके पीछे हैं उसके बारे में भी सरकार तहकीकात कर रही है। उसके चेहरे को भी उजागर किया जाएगा और बिहार के गरीबों के साथ, उसके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। यादव ने कह रहे हैं कि मजाक बन गया शराबबंदी और मौत के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार है। तेजस्वी यादव जी जब विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष होकर के ये प्रश्न उठाता था और आप उसी जिले में दौरा कर रहे थे, देखने तक नहीं गए थे, उस समय आवाज उठाने में क्यों दर्द होती थी? विजय सिन्हा उस समय भी इसका निंदा किया था, इसका प्रतिवाद किया था, आज भी करता है। और ऐसे अपराधी जो इसके पीछे कहीं न कहीं छुपे हैं, राजद से जुड़े हैं, ऐसे मानसिकता के लोग बचेंगे नहीं। आज भी शराब के अवैध धंधे में कौन लोग लगे हैं? शराब बनाने वाले लोगों को उम्मीदवार कौन बनाता है तेजस्वी यादव जी की हिम्मत कि घोषणा करेंगे कि हम न अपराधी को न शराबी को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। गोपालगंज में कौन उम्मीदवार बनाया था? शराब का अवैध कारोबार करने वाला उम्मीदवार बनता है राजद से और बाहर में ढोल बजाते हैं। ये दोहरा चरित्र, दोहरा भाषा, दोहरा खेल बंद करें। पिछली दफा जब घटना घटी थी मशरक में आप गए हुए थे, उस समय विपक्ष में थे, आपने कहा था शराबबंदी पूरी तरह फेल है, अभी क्या कहेंगे ये बताइए। मैं तो कह रहा हूं कि शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में लागू है और सरकार और सबकी सहमति से लागू हुई है। तो जिम्मेदारी बनती है कि इस शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिए सब सहयोग करे और ऐसे अपराधी को बचाने का खेल बंद करे। तो आ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચાર। ફરી મળીશું નવી વિગત સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહો જનાદેશ ન્યૂઝ। નમસ્કાર।